हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल भी। दीप गगन जी सत श्री अकाल। जसविंदर सिंह गुड मॉर्निंग। गुरु शेरगिल जी गुड मॉर्निंग। फटाफट सारे जने च लिंक भेज दो भी ताकि सारे जने लाइव आ जान, फिर आप क्लास ਨੂੰ शुरू करिए। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਟਰਨੈਟ क्या है ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਲਾਈਵ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। 1 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। 9:14 ਤੇ ਕਲਾਸ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਫਟਾਫਟ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਬਰਾੜ ਜੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਪੇਪਰ ਚੋਂ। ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਸੀਮਾ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग। ਵਿੱਕੀ ਮਾਨਸਾ ਜੀ ਗੁੱਡ मॉर्निंग। ਚਲੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਵੀ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਰਫਾ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ। 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਅਰਫਾ ਨੈਟ ਦੇ ਥਰੂ, ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਥਰੂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਸ ਅਰਫਾਨੈਟ ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ? ਵਿੰਟਨ ਜੀ ਸਰਫ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਸਰਫਿੰਗ ਕਹਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ, ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਵਿਸ਼ਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੈਬ ਦਾ ਟਿਮ ਬਰਨਰ ਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਓਨਲੀ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੈਬ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਪਿਕਚਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਂਡ ਵੈਬ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਸਿੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂ ਫਸਟ ਅਰਫਾਨੈਟ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਆਨਲਾਈਨ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਆਈ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਆਇਆ ਤੇ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਕੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਆਪਾਂ ਸੀਗਾ ਈਮੇਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੈਸ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁੱਡ ਮॉर्निंग। ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਆ ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਥਿੰਗ,
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ISP। ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ISP, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ। ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ISP ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ISP ਹੈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਡੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਡੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨੈਟਵਰਕ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੋਡਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਨੈਟਵਰਕ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਸੋਚੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੋਡਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ? ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਘਰੇ ਵਾਈਫਾਈ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਫਾਈ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਘਰੇ ਵਾਈਫਾਈ ਲਵਾਓਗੇ, ਮੋਡਮ ਤਾਂ ਲਵਾਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ। ਨੈਟਵਰਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਡੈਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਫਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, UC ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਡੈਮ ਲਾ ਕੇ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੈਟਵਰਕ ਆਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹਾ ਥੋਰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ISP ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਕਿ ISP ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ, ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੰਪਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕੰਪਨੀ BSNL ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ VSNL ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਟੈਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵੋਡਾਫੋਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਐਕਸੈਕਟਰਾ। ਯਾਨੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ISP ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ISP ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ISP ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਲੌਜਿਕ ਹੈ, ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਰਾਊਜ਼ਰ, ਕਿ ਇਹ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਬ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਬ ਕੋ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੈਬ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਗੂਗਲ ਕਰੋਮ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ,
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है जी। ये जिन्ने भी अपने संसाधन ने या वैबसाइट ने उन्हां दे जिहड़े एड्रैस हुंदे ने उन्हां एड्रैस नूं मैं दस्सिया सी की कहने आपां URL कह दिंदे आ। की कह दिंदे आ URL। लवप्रीत जी की पूछ रहे हैं गूगल ब्राउज़र है या कल्ला गूगल? यार हद है यार, जो आपां नूं पता है गूगल क्रोम, जो क्रोम की गल आ जाएगी तो एक ब्राउज़र है, और जो कल्ले गूगल की आएगी तो उहदे ते आपां साइट खोल रहे हैं गूगल की। दोनों अड अड हो गए, ठीक है जी। एड्रैस URL, और URL का मतलब की होंदा है यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है जी। हाँ, गूगल एक सर्च इंजन है बिल्कुल। हुण देखो URL की गल करिए, यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मैं की क्या कि ब्राउज़र एक तरह के प्रोग्राम होंदे ने जिन्हां नूं एक्सैस करन वास्ते आपां यूज़ करते हैं, है ना। वैब सीरीज़ या कुछ भी इहो चीज़ां हो गया उन्होंने एक्सैस करन वास्ते होंदियां। एग्जाम्पल के रूप च गल करिए गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, है ना, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये सारे के सारे की ने साडे ब्राउज़र ने। इन्हां दा जिहड़ा एड्रैस हुंदा है उस एड्रैस नूं आपां की कह दिंदे आ URL कह दिंदे आ, यानी यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कह दिंदे आ, ठीक है जी। यूनीफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कह दिंदे आ। जे आपां नूं पुछ लिया जाए कि ब्राउज़र दे भाग किन्ने हुंदे ने, तो याद रखियो कि जिहड़ा ब्राउज़र हुंदा है, ब्राउज़र के कितने भाग होते हैं? 4 भाग हैं। ये गल याद रखियो सारे जने कि ब्राउज़र जिहड़ा हुंदा है उहदा 4 भाग हुंदे ने। पहला जिहड़ा भाग हुंदा है वो हुंदा है HTTP, पहला भाग तो आ हुंदा है। दूजा भाग की हुंदा है ब्राउज़र दे विच, जे आपां गल करिए, ठीक है जी। ब्राउज़र का मतलब एड्रैस, ब्राउज़र का मतलब मैं किस तो ले रहा इत्थे, ध्यान रखियो एड्रैस तो, जिहड़ा URL दस्सिया है, ठीक है। एड्रैस के किन्ने भाग हो गए, यानी ब्राउज़र के किन्ने भाग हो गए? 4। पहला की हो गया HTTP डॉट ला के अगे स्लैश 2 बारी, फिर आप इनू ये भी कह सकते हैं इस थानू HTTP, ठीक है, या इनू HTTPS भी कह देंगे हैं, ठीक है जी। दूजे नंबर पर आता है जी साडा www। तीजे नंबर पर साडा आता है जी google.com, google.com कला। और चौथे नंबर पर आ जाता है कला, दस्या सीगा मैं .com। इनू पूरे नू google.com कहांगे, अदरवाइज कला .com भी आ सकता है। नहीं बेटा लवप्रीत जी, एक नहीं लगेगा, 2 लगते होंगे है। ठीक है जी। हुण देखो ध्यान नाल, हुण देखो जे आपां HTTP की गल करिए, जिवें आपां लिखिया ये एक तरह का प्रोटोकॉल हुंदा है। की हुंदा है? प्रोटोकॉल हुंदा है, ध्यान रखियो। www नूं आपां की कह दिंदे आ? वर्ल्ड वाइड वैब, ठीक है जी। google.com तुहानूं पता है सारिਆਂ नूं डोमेन नेम हुंदा है, और .com नूं कह दिंदे आपां टॉप लैवल डोमेन नेम। टॉप लैवल डोमेन नेम, ठीक है जी। हुण जे आपां नूं कोई पुछ लवे कि जिहड़ा डोमेन नेम हुंदा है जी वो की यूनिक हुंदा है, तुसीं सारिਆਂ ने यही गल कहनी है, हाँ जी सर, कि जिहड़ा डोमेन नेम हुंदा है वो एक तरह का यूनिक नेम हुंदा है, ठीक है जी। जिहड़ी कि जिन्ना भी आपां वैब दे उत्ते ब्राउज़ कर रहे हैं कुछ चीज़ां नूं वैब दे उत्ते, ओहदी लोकेशन नूं दर्शाउंदा है। ओहदी किहनूं दर्शाउंदा है? लोकेशन नूं। किहड़ा भी जिवें हुण google.com है तो इहदी लोकेशन है भी असीं गूगल ते काम कर रहे हैं, ठीक है। मोजिला firefox.com ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ मोजिला फायरफॉक्स से काम कर रहे हैं। मान लो मेरी आपकी साइट है मैं jasdeepsingh.com, ਇਹਦਾ मतलब मैं jasdeepsingh.com ਤੇ काम कर रहा। तो कहने का मतलब हो गया कि एक यूनिक कोड होंदा है डोमेन नेम जिहड़ा भी होंदा है, ठीक है जी।
और जे आपां गल करिए जिहड़ा टॉप लैवल डोमेन नेम हुंदा है ये की हुंदा है, ये वैबसाइट नूं दर्शाउंदा है। किहनूं दर्शाउंदा है? वैबसाइट नूं। तो ध्यान रखियो, मैं दुबारा फिर लिख देना, हालांकि मैं पहलां भी दस्सिया होया ये वाली गल कि जिहड़ा डोमेन नेम हुंदा है ये तां लोकेशन नूं दिखाउंदा है। पेपर दे विच सीधा सीधा क्वेश्चन बन जाता है लोकेशन नूं। और जिहड़ा टॉप लैवल है, जिहड़ा टॉप लैवल डोमेन नेम है वो किन्नू दर्शाउंदा है? वो दर्शाउंदा है वैबसाइट के प्रकार नूं, वैबसाइट के टाइप को दर्शाता है भी एक किस तरह की वैबसाइट है। ठीक है जी। जे आपां गल करिए, जिवें आपां गल कर लैंदे आ, इहदे विच कुछ नाम ने, जिवें मैं मेरे जिन्ने मैनूं याद है मैं दस दिना। जिवें कल्ला .com का पुछ लिया, सानूं पता है जी एक कमर्शियल वास्ते आउंदा है। किहदे वास्ते आउंदा है? कमर्शियल वास्ते। ठीक है जी। दूजे नंबर पर मान लो आप लिख लिया .in, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ पढ़े हुए ने मैं वही लिखा रहा। .in ਇਹਦਾ मतलब हो गया भी ये इंडियन ਨੂੰ दर्शा रहा है। ठीक है। फिर उस तो बाद तीजे नंबर पर आप ले लेने .edu। .edu मतलब एजुकेशन ਨੂੰ दर्शाਉਂਦਾ है। ठीक है। फिर उस तो बाद आप गल करिए चौथे नंबर पर, जिवें आ गया .mil। .mil का मतलब की हो जाएगा? मिलटरी ਨੂੰ दर्शाਉਂਦਾ है। ठीक है जी। उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 5 आ गया, मान लो .nic। .nic किनू दर्शाएगा? नैशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर ਨੂੰ दिखा देगा। ये इंपोर्टेंट है, आया हुआ है पेपर दे विच, नैशनल इनफॉर्मेटिक सेंटर। ठीक है जी। तो लास्ट वन अगर आप थोड़ा सा गल कर लिए .net, ये नैटवर्क ਨੂੰ दिखा दिंदा है तो बहुत, लेकिन जरूरी नहीं दसन दी, क्योंकि पता है पेपर दे विच नहीं पुछदा है। पेपर दे विच सिर्फ याद रखना है तुहानूं कि जिहड़ा टॉप लैवल डोमेन है ये वैबसाइट के टाइप ਨੂੰ दिखाउंदा है, और जिहड़ा डोमेन नेम है वो कल्ला लोकेशन ਨੂੰ दिखाउंदा है। कल्ला किहनूं दिखाउंदा है? लोकेशन ਨੂੰ दिखाउंदा है। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ? फटाफट दसो। जिवें एक बच्चे ने कहा कि .gov, बिल्कुल सही गल है। किहनूं दर्शाउंदा है? गौरमेंट ਨੂੰ दर्शाउंदा है, बिल्कुल सही गल है। हाँ जी, फटाफट दसो भी इन्नी चीज़ समझ आ गई? चलो जी, इन्नी चीज़ सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग गई। हुण आपां थोड़ा जिहा अगे चलते हैं इहदे विच ही, वैब ब्राउज़र दे विच ही। ठीक है जी। इहदे विच की हुंदा है, तुहाडे कोलों पेपर दे विच क्वेश्चन कुछ इस तरीके दे पुछ लैंदा है कि वैब ब्राउज़र किन्ने प्रकार दा हुंदा है। क्वेश्चन की पुछ लैंदा है? वैब ब्राउज़र किन्ने प्रकार दा हुंदा है। भी आपां नूं पता लग गया भी इहदे एड्रैस तां 4 प्रकार दे हुंदे ने, उहदे 4 भाग दस्से मैं तुहानूं, लेकिन सानूं साफ साफ चल के पुछ लिया कि जिहड़ा वैब ब्राउज़र हुंदा है वो किन्ने प्रकार दा हुंदा है। तो ध्यान रखियो, जिहड़ा वैब ब्राउज़र हुंदा है वो 2 टाइप का हुंदा है। किन्ने टाइप का हुंदा है? 2 टाइप का हुंदा है। पहला जिहड़ा हुंदा है वो हुंदा है टैक्सट बेस। किहड़े टाइप का हुंदा है? टैक्सट बेस्ड। दूजा हुंदा है ग्राफिकल। किहड़ा हुंदा है? ग्राफिकल। 2 तरह का साडा की हुंदा है जी, वैब ब्राउज़र हुंदा है। ये गल ध्यान रखनी सारिਆਂ ने। जे आपां नूं कोई पुछ लवे भी जिहड़ा टैक्सट ब्राउज़र हुंदा है इहदे विच की हुंदा है, मतलब आ इहो जिहा ब्राउज़र है टैक्सट बेस जिहदे विच सिर्फ और सिर्फ आपां टैक्सट लिख सकते हैं, जिहदे विच आपां सिर्फ की लिख सकते हैं? टैक्सट लिख सकते हैं। ध्यान रखियो। ओ शिट, वेट करो भी एक बारी, हो गया। चलो, टैक्सट बेस का मतलब की हुंदा है? टैक्सट बेस का मतलब होता है भी ऐसा ब्राउज़र जो टैक्सट पर आधारित हो, ऐसा ब्राउज़र जो किस पर आधारित हो? टैक्सट पर आधारित हो। और सानू साडे पेपर दे विच क्वेश्चन की पूछा हुआ है कि सबसे पहला टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउज़र का नाम बताइए। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा गया है, सबसे पहले टेक्स्ट ब्राउज़र का नाम बताइए। पता है किसी नू? जे पता है तो फटाफट लिख दो।
सबसे पहले टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर का नाम बताइए। पता है किसी नू? शाबाश है। नहीं, गलत। सब तो पहला जिहड़ा टेक्स्ट बेस्ड वेब ब्राउजर सीगा वो सीगा जी लिनक्स। किहड़ा सीगा? लाइनक्स। बस ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ इन्ना ਜਿਹਾ क्वेश्चन याद रखना है, बाकी नाम तो कुछ नहीं पूछेगा पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ कि टैक्सट बेस वो की हुंदा है, सानू पता ही है टैक्सट ਦੇ ਉੱਤੇ आधारित होएगा। ठीक है जी। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ग्राफिकल बेस की गल करते हैं। आ भी एक इहो जिहा वैब ब्राउजर हुंदा है जिहड़ा ग्राफिक ते आधारित हुंदा है। किहड़े ते आधारित हुंदा है? ग्राफिक्स ते आधारित हुंदा है। हुण साडे कोलों पेपर च पूछ लिया कि ग्राफिक्स ते तां आधारित हुंदा है, लेकिन सब तो पहला ग्राफिक्स बेस्ड वैब ब्राउजर किहड़ा सीगा? सब तो पहला ग्राफिक बेस्ड वैब ब्राउजर किहड़ा सीगा? ध्यान रखियो, मोसिक। किहड़ा सीगा? मोसाइक। ठीक है जी, मोसाइक सीगा पहला। ठीक है। अच्छा, वैसे पुछदा नहीं है लेकिन चलो नॉलेज है, दस देना तुहानू। ये तो 1992 दे विच बनाया सीगा और ये एक साल बाद 1993 दे विच बनाया सी। ठीक है जी, एक साल बाद ही। अच्छा, हुण आपां नू ये भी पता है कि जिहड़ा वैब ब्राउजर सीगा वो 1990 दे विच किन्ने बनाया सीगा? टिम बर्नर ली ने बनाया सीगा, है ना। www वाला वैब ब्राउजर बनाया सीगा। सही है ना ये गल? क्योंकि आपां नू पता है कि जिहड़ा पहला वैब ब्राउजर बनाया वो टैक्सट बेस बनाया, वो इन्ना प्रचलित नहीं होया। फिर उस तो बाद उन्हें ग्राफिकल्स बनाया। की बनाया? ग्राफिकल बनाया। जो ग्राफिकल बनाया उदों आपां नू पता लग गया भी हाँ जी ग्राफिकल दे बेस ते की होएगा? मोसाइक। वो बहुत ज़्यादा की हो गया? लोकप्रिय हो गया। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ नू? दसो बई। चलो जी, हुण आपां गल कर लैने इहदे विच कि वैब ब्राउजर के नाम की ने। विक्की मानसा जी 90 तो 91 दे विच बनाया सीगा, इस करके पेपर दे विच 91 भी ऑप्शन आ सकता है तो 91 सही हो जाएगा, जो 91 ऑप्शन च नहीं आया तो 1990 हो जाएगा। ठीक है विक्की मानसा जी, क्योंकि उन्होंने 1990 से लेके 1991 विच एवें बनाया सीगा। ठीक है। चलो हुण आपां गल करते हैं जी लिस्ट ऑफ वैब ब्राउजर। हाँ जी, हुण जिन्ने भी नाम तुहानू पता है फटाफट नाम ले लो, फटाफट जेड़े जेड़े नाम पता है। सब तो पहला तो www, दूजे नंबर ते लिनक्स, तीजे नंबर ते मोसाइक, चौथे नंबर ते हाँ जी ये इंपोर्टेंट है नेटस्केप, नेविगेटर। नेटस्केप नेविगेटर। ठीक है जी, ये भी एक वेब ब्राउजर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है जी। फिर ओपेरा, फिर उस तो बाद सफारी, उस तो बाद विच होर नाम लईए तो मोजिला फायरफॉक्स, मोजिला फायरफॉक्स। ठीक है जी। मोबाइल सफारी, मोबाइल सफारी, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, उस तो बाद विच माइक्रोसॉफ्ट एज, माइक्रोसॉफ्ट एज। बिल्कुल सारिਆਂ ਦਾ सही है यार। लवप्रीत किहो जे क्वेश्चन पूछते हो यार, जरूरी थोड़ी ना है कि एवें याद करने जिवें मर्जी याद कर लो। चलो जी, लिस्ट ऑफ वेब ब्राउजर।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰ ਲਿਸਟ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਮਤਲਬ www ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਲਾਈਨੈਕਸ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੋਸਾਈਕ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਨੈਟਸਕੇਪ ਨੈਵੀਗੇਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਓਪੇਰਾ ਮਿਨੀ, ठीक है, सफारी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, मोबाइल सफारी हो गया, गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एज, ये सारे वैब ब्राउज़र ने। तुसीं कहोगे सर ये क्यों लिखाए? तुहाडे पेपर दे विच एक सिंपल जिहा क्वेश्चन ये बन सकता है, निम्न में से वैब ब्राउज़र नहीं है, तो तुहानूं इन्हां सारिਆਂ दे नाम पता होने चाहिए ने कि ये वैब ब्राउज़र हैगे ने। ठीक है जी, चलो हुण आपां जे गल करिए www दसन की लोड़ नहीं है, टिम बर्नर ली ने बनाया सीगा 1990 तो लेके 1991 दे विच, ते 1991 भी सही है तो 1990 भी सही है। ठीक है जी, अगे लाइनैक्स, लाइनैक्स की गल करिए तो आपां नूं पता है भी एक टैक्सट बेस की सीगा, एक ब्राउज़र सीगा जिहड़ा कि अपना ग्राफिकल डाटा नूं शो नहीं करता सीगा, ते मोसाइक की सीगा कि एक ग्राफिकल वैब ब्राउज़र सीगा जिहड़ा कि ग्राफिक्स नूं दिखाउंदा हुंदा सीगा। ठीक है जी, फिर उस तो बाद विच अगे गल करिए नैटस्केप नैवीगेटर। नैटस्केप नैवीगेटर की चीज़ है? ये जिहड़ा मोसाइक पढ़िया सी ना आपां, मोसाइक जिहड़ा ग्राफिकल दे उत्ते डिपेंड सीगा, ये ओहदा थोड़ा जिहा बदलिया होया रूप है। जिहड़ा नैटस्केप नैवीगेटर है ये मोसाइक दा बदलिया होया की सीगा, रूप सीगा। ठीक है जी, बस इहदे विच नैवीगेशन होना शुरू हो गया सीगा, बस इन्नी जी गल याद रखनी है। फिर उस तो बाद विच इंटरनेट एक्सप्लोरर दस्सण दी लोड़ नहीं है, तुहानूं सारिआं नूं पता है कि वैब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, बस इन्नी जी गल याद रखनी है। दोनों दे मैं तुहानूं सन दसे, इन्हां दोनों दे सन दसे। याहू लवप्रीत बड़ार जी नहीं है, याहू एक सर्च इंजन है, गूगल एक सर्च इंजन है। ये 1992 दे विच ते 1993 दे विच। ठीक है जी, जे पुछ लवे तो ये 1994 दे विच और ये 1995 दे विच, ये लगातार ने। ठीक है जी, फिर ओपेरा की गल करिए, ओपेरा की गल करते हैं तो ओपेरा जिहड़ा सीगा ये भी एक वैब ब्राउज़र है जिहड़ा 1994 दे विच बनाया। तो इन्हां नंबरां दे याद करने की लोड़ नहीं है, सिर्फ तुहानूं याद ये दो चीज़ां करनियां सी क्योंकि ये मेन है, क्योंकि इन्हां दे आधार दे उत्ते ही वैब ब्राउज़र बनया। जिहड़ी चीज़ मेन हुंदी है उहते ही पेपर दे विच पुछदा है। सफारी की गल करिए, ये भी की एक तरह का वैब ब्राउज़र है जिहड़ा एप्पल कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम दे विच पाया जाता है ना, एप्पल कंपनी दे। उस तो बाद विच मोजिला फायरफॉक्स, तुहानूं सारिआं नूं पता है, मोजिला फायरफॉक्स के बारे भी दस्सण की लोड़ नहीं है। फिर उस तो बाद विच मोबाइल सफारी, ये भी सेम एप्पल कंपनी के मोबाइल दे विच पाया गया सीगा। गूगल क्रोम सब तो ज़्यादा चर्चित है जिहड़ा कि 2008 दे विच बनाया सी, पुछ सकदा है पेपर दे विच। जिहड़ा कदों बनाया सी, 2008 दे विच बनाया सीगा। ओपेरा मिनी की गल करिए तो 2011 दे विच लॉन्च होया सीगा। ठीक है जी, ओपेरा मिनी। और माइक्रोसॉफ्ट एज की गल करिए तो यह 2015 दे विच बनिया सीगा। हुण तुसीं कहोगे सर इन्हां दे क्यों लिखाए, क्योंकि कदी कदी पुछ लैंदा है सन इन्हां दे भी, क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा प्रचलित ने, जिहड़ी चीज़ ज़्यादा प्रचलित होंदी है उहदे बारे ज़्यादा पुछ लैंदा है। ठीक है ना, बट तुहानूं सिर्फ इन्नी जी गल याद रखनी है कि वैब ब्राउज़र की लिस्ट दे विच कौन कौन है। ठीक है जी, लिस्ट ऑफ वैब ब्राउज़र की गल कर रहे सी आपां। ठीक है जी, इन्नी गल समझ आ गई सारिआं नूं? लवप्रीत जी दस दूंगा, वेट करो। इन्नी गल समझ आ गई? पहला आपां टॉपिक पढ़ांगे उस तो बाद विच, क्योंकि मेन टॉपिक है अपना, ये चीज़ां बाद च पढ़ लांगे जिहड़ियां नॉलेज लेनी है बाद च। चलो जी, ये लिस्ट ऑफ वैब ब्राउज़र की होगी। हुण आपां गल करते हैं इंपोर्टेंट टर्म्स इहदियां, इंटरनेट दियां इंपोर्टेंट टर्म्स। इंपोर्टेंट टर्म्स की होंदियां इंटरनेट दियां? जिवें सब तो पहली चीज़, तुसीं इंटरनेट दे विच की लाउने हुंदे हो? वैबसाइट लाउने हुंदे हो कि नहीं लाउने हुंदे? लाउने हुंदे हो ना। फिर तुसीं उस वैबसाइट दे विच सर्च इंजन भी भालदे हुंदे हो, भालदे हुंदे हो कि नहीं भालदे हुंदे? फिर तुसीं उस तो बाद विच गल करिए आपां वैबसाइट के उत्ते की करते होंगे हो? सर्च इंजन भालते होंगे हो। जो सर्च इंजन भाल जाते हो फिर वो वैब्स की की देखते होंगे हो? यूटिलाइजेशन, वैब की यूटिलाइजेशन देखते होंगे हो भी वैब किस तरह के नाल काम करता है ना, किवें अपने को चीज़ां पहुँचदियां ने। चलो फिर जे आप गल करिए वैबसाइट की, सारिआं नूं पता है
कि वैब नूं दिखाउण वाला जिहड़ा पेज हुंदा है वो वैब पेज कहलाउंदा है। वैब को दिखाने वाला पेज की कहलाउंदा है? वैब पेज। सही है जी। वैब को दिखाने वाला जो पेज होता है वो क्या कहलाता है? वैब पेज कहलाता है। जे आपां गल करिए एक जां एक तो ज़्यादा पेज जिहड़े हुंदे ने वो मिल के की बनाउंदे ने? एक या एक से ज़्यादा मिलकर एक वेबसाइट का निर्माण होता है। ठीक है जी। मतलब जिहड़ा वैब होंदी है उन्होंने दिखाने वाला पेज तो की दिखाता है? वैब पेज। जिवें आपां गूगल क्रोम मान लो गूगल खोलिया, आपां गूगल ते क्लिक किया, जो क्लिक किया तो वह साडा वैब पेज है, जिहड़ा सामने आएगा साडे पहला वो वैब पेज आएगा। लेकिन जो तुसीं उस ते कोई वैबसाइट खोलोगे तो वो एक जां एक तो ज़्यादा मिल के उहदे ते सारा कुछ तुहानूं दिखाउंदी है चीज़ां, उन्हां नूं की कहंदे ने आपां? वैबसाइट कहंदे ने। ये जिन्ने भी लिखवा रहे ना इस इन्हां विच्चों ये भी क्वेश्चन बनेगा पेपर दे विच, आ भी क्वेश्चन बनेगा पेपर दे विच। अगली चीज़ देखो, अच्छा पेपर दे विच आउंदा है वैबसाइट दा प्रथम पेज की कहलाउंदा है? वैबसाइट दा फर्स्ट पेज की कहलाउंदा है? दसो मैनूं, जिन्नूं पता है दसो। वैबसाइट दा फर्स्ट पेज, बिल्कुल सिमरनजीत, की कहलाउंदा है? होम पेज। बिल्कुल, पेज नहीं कहलाउंदा लवप्रीत, होम पेज। ठीक है जी। वैबसाइट का जिहड़ा फर्स्ट पेज होएगा उन्होंने की कहांगे आपां? होम पेज कहांगे। अच्छा, प्रत्येक वैब पेज ते हरेक प्रत्येक वैब पेज ते HTML भाषा दे विच HTML भाषा दे विच कमांड होती है। ये भी गल याद रखनी है। HTML की फुल फॉर्म दसी हुई है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये गल सारिਆਂ ने याद रखनी है। ठीक है जी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगे चलते हैं आप, वेट करो। नेक्स्ट, प्रत्येक वेब पेज पर HTML भाषा में क्या दी होती है? कमांड दी होती है। ठीक है जी। और इसी टेक्स्ट के नाल नाल टेक्स्ट के साथ साथ, ठीक है, इसी टेक्स्ट के साथ साथ हाइपर लिंक भी होते हैं। हाइपर लिंक भी होते हैं। हुण जिन्होंने नहीं पता वो ध्यान नाल देखियो, ये हाइपर लिंक की है। देखो मैं एक साइट खोली, जिवें आपां गल कर लेने, साइट तुहानूं खोल के दिखाई दिंदे आ। आ देखो ध्यान नाल सारे जने, मैं इत्थे लिखिया मैं इत्थे लिखता, मान लो सपोज दैट आप कोई भी खोलते, आप लॉगिन करते हैं, जिवें RSSM। ठीक है जी। आप खोल लिया, मैं एक साइट खोल ली, मतलब वो मेरा वैब पेज सीगा। इस जो क्लिक किया और जो मैं इस ते क्लिक करूँगा तो ये मेरी की बन गई? एक साइट होगी। ये मेरी की होगी? साइट होगी। ठीक है जी, ये मेरी एक साइट है। हुण देखो मैं साइट खोल के रखती सामने, मैं तुहाडे, इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ नूं? ये मैं एक साइट खोल के तुहाडे सामने रखती। हुण इस साइट दे देखो सारे हाइपर लिंक ने। जो मैं ये उत्ते जा रहा, देखो जो मैं ये उत्ते जा रहा तो लिखा ना रिक्वायरमेंट एडवरटाइजमेंट, इस ते एक हथ का निशान बन गया। देखो जिहदे उत्ते हथ का निशान बनता है और थल्ले पढ़ो, देखो छोटे जे रूप च, देखो थल्ले थल्ले छोटे जे रूप च लिखा ना HTTPS
फिर डॉट डबल RSMSSB राजस्थान डॉट गवर्नमेंट डॉट इन पेज मेन्यू नेम थले लिखे आ रहा है ना, ये ਇਹਦਾ ਕੀ है, ये ਇਹਦਾ HTML है, हाइपर लिंक है ਇਹਦਾ। यानी ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ क्लिक करूँगा तो ये मैनू दूजे पेज ते ले जाएगा। आ देखो ले गया मैनू दूजे पेज ते। हुण ਜਦੋਂ मैं ਇਹਦੇ ਤੋਂ भी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ भी कहता इन्हें हाइपर लिंक होर पाता कि ਜਦੋਂ मैं इस ते क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने नवा पेज होर खोल देगा। इनू क्या जाता है हाइपर लिंक। की क्या जाता है हाइपर लिंक क्या जाता है। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ कि नहीं आई, फटाफट दसो यस या नो। इन्नी गल समझ आई कि नहीं आई सारिਆਂ ਨੂੰ। ठीक है जी, अज वाला डाटा उड़ गया बई। चलो कदी कदी दिक्कत आ जाती है कंप्यूटर के विच भी, एकदम जो आप कुछ नवी चीज़ खोलते हैं ना। चलो सो तुहानू इन्नी गल तो पता लग गई होएगी वैबसाइट के बारे कि हाइपर लिंक ये होंदे ने। ठीक है जी, हाइपर लिंक ये होंदे ने जिहदे नाल दूजा पेज की होंदा है जुड़िया होंदा है। ठीक है जी, जे आपां गल करिए हाइपर लिंक जिहड़े होंदे ने, हाइपर लिंक की होंदे ने अंडरलाइन दे विच। हाइपर लिंक किहदे विच होंदे ने, हाँ बैक लिंक भी कह सकते हैं, अंडरलाइन दे विच होंदे ने। मतलब ये ध्यान रखो जिते हाइपर लिंक लग्या होएगा ना उत्थे अपने कंप्यूटर दे विच तुसीं वर्ड फाइल कर रहे हो उत्थे ब्लू रंग का एक डिजाइन बन जाएगा। की बन जाएगा, ब्लू रंग का एक डिजाइन बन जाएगा, ध्यान रखियो ये गल। ठीक है जी, ये नीले रंग दे विच आउंदे ने, ये भी गल याद रखियो कि हाइपर लिंक जिहड़ा हुंदा है वो नीले रंग दे विच दिखदा है सानू। इन्नी गल समझ आ गई सारिਆਂ ਨੂੰ। फटाफट दसो कि वैबसाइट जिहड़ा हुंदा है उहदे ते वैब नूं दिखाउण वाला जिहड़ा पेज हुंदा है वो वैब पेज कहलाउंदा है। एक जां एक तो ज़्यादा जिहड़े वैब पेज हुंदे ने वो मिल के की बनाउंदे ने, वैबसाइट बनाउंदे ने। वैबसाइट का जिहड़ा पहला पेज हुंदा है उहनूं होम पेज कहंदे ने ते प्रत्येक वैब पेज ते HTML भाषा दे विच की लिखी हुंदी है, कमांड लिखी हुंदी है तथा इहदे विच हर टैक्स्ट दे नाल की जुड़े हुंदे ने, हाइपर लिंक हुंदे ने। ठीक है जी, हाइपर लिंक दे विच की हुंदा है एक पेज दूजे पेज दे नाल जुड़िया हुंदा है, जिन्हों आपां जिवें बच्चे ने कहा कि अपने बैक लिंक है ना, बैक लिंक। हाइपर लिंक सामान्यतः अंडरलाइन किए होंगे ने अते नीले रंग अते चित्र के रूप च आपां नूं दिखते हैं, एक हाथ के प्रकार का आपां नूं दिख जाता है। ठीक है जी, लवप्रीत जी पूछ रहे हैं कि बुकमार्क की हुंदा है। ये बुकमार्क तो बहुत अड चीज़ है बेटा, जिहड़ी ये बुकमार्क है ना ये हाइपर लिंक नहीं कह सकते आपां इहनूं। बुकमार्क का काम यही हुंदा है बट ये सिर्फ मार्क करने का काम करता है चीज़ों को, ना कि लिंक देने का। लिंक देने का काम हमेशा कौन करेगा, हाइपर लिंक ही देगा। बुक मार्क सिर्फ चीज़ों को मार्क करके रखने के काम आता है भी हाँ कल नूं सानू जरूरत पएगी तो असीं वापस कढ लांगे। ठीक है जी, सो ये बारे आप अगे चर्चा पूरी की पूरी करांगे। बुक मार्क की चीज़ है ना, हैडर की है, फुटर की है, थले सिग्नेचर करते हैं उन्होंने की कहते हैं, ये सारा आप उहदे विच ही पढ़ांगे। ठीक है, चलो अगे चलते हैं। नैक्सट सर्च इंजन सैकेंड नंबर पे। सर्च इंजन नाम तो ही पता लग रहा है सर्च इंजन कौन कौन हो सकते हैं। ये वो प्रोग्राम होंगे ने जिहड़े इंटरनेट ते सूचना खोजण दे काम आउंदे ने, सूचना खोजण दे काम आउंदे ने अपने कोले। ठीक है जी, जिवें आपां गल करिए google.com, yahoo.com। ठीक है जी, होर आपां कहिए सर्च इंजन जिवें
ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸਰਚ ਇੰਜਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਗੇ ਨੇ ਪਰ ਮੇਨ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਚ ਇੰਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, हाँ बीइंग बिल्कुल सही है, ਜਿਹੜਾ सर्च इंजन ਹੁੰਦਾ है उस सर्च इंजन में आ ध्यान रखियो, ये सब तो मेन है। सर्च इंजन में स्पाइडर नामक एक प्रोग्राम पाया जाता है, स्पाइडर नेम का एक प्रोग्राम डाला जाता है, ठीक है जी। प्रोग्राम पाया जाता है जेड़ा कि जो लगातार नई सूचनाओं की खोज करता है, जो लगातार नई सूचनाओं की क्या करता है, खोज करता है। इन्नी गल सारिਆਂ ने याद रखनी है। तथा डेटाबेस को अपडेट करता है, ठीक है जी। बस इस सर्च इंजन के बारे इन्नी जी गल याद रखनी है कि जिहड़ा सर्च इंजन है वो गूगल है तो याहू है। पेपर दे विच बस इन्नी जी गल पूछ सकता है भी सर्च इंजन में कौन सा प्रोग्राम का उपयोग होता है जिससे सूचनाओं की लगातार नई नई खोज होती रहती है, जिसमें डाटाबेस अपडेट भी होता है। तो याद रखना है स्पाइडर, नाम तो ही पता लग रहा है ना, स्पाइडरमैन है ना, तो स्पाइडर ध्यान रखियो। सर्च इंजन का मतलब ही की हो गया इत्थे, स्पाइडर तो लिता गया। नैक्सट वन इज, जे आप थर्ड की गल करिए, हुण जे आप गल करिए थर्ड, ये ही सर्च इंजन दे विच होर की चीज़ां आउंदियां ने। तो सर्च इंजन दे विच सब तो पहली चीज़ आप गल करिए कि सर्च आप किहदे किहदे करते हैं। सर्च सब तो पहला तो आप करते हैं कीवर्ड सर्च। एक तो आप सर्च करते हैं की दे नाल, है ना, जिवें आप कह दें मैं एक गूगल दे उत्ते मैनू किसी नवी वैबसाइट के बारे मैनू नहीं पता, मैनू किसी ने दसी, तो मैं उस वैबसाइट नू पूरे का पूरा की करूँगा, लिखूँगा। मैं उसनू पूरे का पूरा की करूँगा, लिखूँगा। यस या नो। जिवें सपोज दैट जे आप गल करिए इत्थे देखियो ध्यान नाल, जे आप इत्थे गल करिए, देखो मैं देखियो ध्यान नाल, मैं इत्थे कोई नवी वैबसाइट लिखनी है जिहड़ी मैं अज तक मेरे कंप्यूटर दे विच पाई नहीं, नवी वैबसाइट, नवा सर्च इंजन, ठीक है। मैं मान लो इत्थे पाता जिवें सपोज दैट, देखो मैं जिवें इत्थे लिखूँगा, मान लो मैं लिखिया JASDEEP, देखो इन्हें मैनू जसदीप सिंह नाम तो एक क्रिकेटर दिखाता, जसदीप नाम तो की दिखाता इन्हें, क्रिकेटर। इनू स्पाइडर क्या जाता है, ठीक है जी, इनू की क्या जाता है, स्पाइडर क्या जाता है। इज दैट क्लीयर। इनू की कहा जाता है, स्पाइडर। मतलब ये तुहानू नाल दी नाल खोज करके दे देगा भी तुसी जसदीप लिखिया तो तुसी सारा तुहानू जो चाहिए होएगा लभ लो। लेकिन मान लो कि सानू नहीं मिल रहा जी वो चीज़, जो नहीं मिल रहा तो आप लिखांगे जसदीप सिंह। हजे भी देखो इन्हें जसदीप सिंह गिल के नाम तो किन्ने कुछ दसते, लेकिन असी हजे भी अगे होर जाना है, जिहड़ा सानू चाहिए वो इत्थे नहीं मिल रहा सानू, तो उन्होंने क्या जाता है, कीवर्ड सर्च। की क्या जाता है, कीवर्ड सर्च, ठीक है जी। उन्होंने की कहते हैं, कीवर्ड सर्च कहते हैं। सन्नी जी पूछ रहे हैं वैब मास्टर टूल की होता है, सबर रखो वो भी आएगा आगे। एक वेब बेस्ड आधारित एप्लीकेशन है। चलो देखो भाई, हुण कीवर्ड सर्च की गल करिए तो आप कह सकते हैं भी इस प्रकार की सर्च में कुछ मुख्य शब्दों का उपयोग कर सर्च की जाती है, क्लियर। तथा इसके बाद वेबसाइट की एक सूची प्राप्त होती है जिसे आप की कहने हैं, हिंट्स कहने हैं। हिंट्स कह रहे हैं ना, जिवें मैं लिखा जसदीप, थले जसदीप सिंह आ गया, गिल आ गया, मैनू अगे चाहिए फिर मैं होर अगे लिखी चलूँगा। यानी कीवर्ड सर्च भी तुसी एक एक की लिखो, तुहानू जे तुहाडा नाम मिल गया तो फटाफट उस पर क्लिक कर दो, जे तुहानू नहीं मिला तो लिखी चलो। इन्नी गल समझ आ गई, उन्होंने कीवर्ड कहते हैं, कीवर्ड सर्च। दूजे नंबर पर डिक्शनरी डायरैक्टरी सर्च।
डायरैक्टरी सर्च। ये जी डायरैक्टरी होंदी है जी, ये एक सीरीज़ के उत्ते डिपेंड होंदी है, एक श्रृंखला के उत्ते डिपेंड होंदी है। ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚयन ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਚयन, ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣਗੇ, परिणाम। जिवें आप गल करिए, मैं लिखा, मैं लिखता मान लो जसदीप सिंह, मैं उस पर क्लिक करता, मैनू अगे थले वो पूरी की पूरी की आ जाएगी, रूपरेखा आ जाएगी। फिर वो मैनू जो सिलेक्ट करना है वो मेरी की होगी, डायरैक्टरी सर्च होगी। की होगी, डायरैक्टरी सर्च। फटाफट दसो, सर्च दो प्रकार की होंगी है, समझ आई कि नहीं आई, दसो भी। चलो जी, कीवर्ड की तो डायरैक्टरी, डायरैक्ट एक श्रेणी के आधार पर एक कैटेगरी बन जाती है, वो आधार पर। हुण एक नोट दस रहा वा, सब तो मेन चीज़ पेपर दे विच आए हुए क्वेश्चन इन्हां चों ही बनणगे। मेटा सर्च इंजन की हुंदा है, मेटा सर्च इंजन की हुंदा है, दसो भी, दसो सारे जने, मेटा सर्च इंजन की हुंदा है। ध्यान रखियो, पेपर दे विच पूछा गया है कि जिहड़ी मेटा सर्च इंजन है ना, जिहड़ा सर्च इंजन है, ये भी एक है तो सर्च इंजन ही, एक ही करता है जो यूजर को, जो, हाँ, इनसाइड वेबसाइट, बिल्कुल, जो यूजर को सर्च, जो यूजर को सर्च करने के अनेक ऑप्शन देता है। जिवें मैं लिख रहा सी ना जसदीप, फिर उन्हें जसदीप सिंह गिल देता, जसदीप क्रिकेटर देता, तो वो की है, वो मेटा सर्च इंजन है। यानी आप उन्होंने मेटा सर्च इंजन भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जेडे यूजर नू सर्च करने वास्ते अनेक ऑप्शन दे दिंदा है, सर्च इंजन दे दिंदा है, उन्होंने आप की कह दिंदे आ, मेटा सर्च इंजन कह दिंदे आ। अर्थात आप कह सकते हैं भी ये जेडे भी सर्च इंजन मिलते हैं उन्होंने हिंट्स कह सकते हैं, आप हिंट, वो साडे वास्ते की होंदे ने, हिंट होंदे ने। ठीक है जी, ਜਾਂ फिर सतिंदर सिंह की गल बिल्कुल सही है, इनसाइड वैब, इनसाइड वैब। ठीक है जी, अच्छा मैनू एक गल दसो, इंटरनेट ते जिहड़ी भी जानकारी होंदी है कि तुहानू हमेशा सही मिलती है, दसो, दसो भी, नहीं, बहुत सही गल। इंटरनेट ते जिहड़ी भी जानकारी सानू मिलती है हमेशा सही नहीं होंदी, परंतु आप कह सकते हैं भी जो इहदा आपां मूल्यांकन करते हैं घरे बह के, तो आप सूचना नू अपडेशन, ओदी ट्रू, ओदी सत्यता की जांच कर सकते हैं अलग अलग साइटां ते जाके। जिवें मैं दैनिक भास्कर खोलिया, उत्थे कोई होर न्यूज़ आई, मैं राजस्थान पत्रिका खोलिया, उत्थे भी वही न्यूज़ आई, तो इत्थों मैनू पता लग गया भी न्यूज़ सही है, भी सारिਆਂ ने एक ही पा रखी है। जिवें हुणे पिछे जे पंजाब पुलिस की वैकेंसी आई नहीं सी, पर लोगों ने पाता नैट के उत्ते भी वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, बट हौली हौली जो आप ऑफिशियल साइट पर गए उत्थे आपां नूं पता लग गया भी आया ही नहीं, वैकेंसी नहीं आई, तो आप मान लिया ना कि हाँ जी फेक सीगी। दसो भी, इन्नी समझ आई कि नहीं आई, दसो भी। चलो जी, इन्ना अपना बिल्कुल की हो गया, कंप्लीट हो गया। वैब यूटिलिटीज़ की आप गल करिए, जे आप वैब यूटिलिटीज़ की गल करिए तो दसन की लोड़ नहीं है। वैब नू यूटिलाइज करने वास्ते आप की करते होंगे, आप वैब बेस्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें आपके कंप्यूटर के विच, जिवें गूगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली, MS वर्ड डाउनलोड कर लिया, MS एक्सल डाउनलोड कर लिया, है ना, ये वैब बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब
ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੀ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਿਲਟਰ ਪਾ ਲਏ। ਫਿਲਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਗੂਗਲ ਖੁਦ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਇਹ ਵਾਲੀ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ RSMSB ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਖੁਲਾਈ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਹ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ, RSMSB ਵਾਲੀ ਖੋਲੀ ਸੀ ਨਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ RSMSB ਵਾਲੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੀ ਸੀਗੀ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਔਰ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਨੋਟ ਸਿਕਿਉਰ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਇਰਸ ਪਏ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। डायरेक्टरी सर्च और मेटा सर्च, हाँ जी बिल्कुल कह सकते हैं। देखो कह तो आप कीवर्ड सर्च नूं भी मेटा प्लस कह सकते हैं आप, बट जे आपां नूं पुछा जाए ना कि मेटा सर्च इंजन की है, तुसीं इन्नी जी गल ही आपदे दिमाग 'च याद रखनी है कि यूजर जिहड़ा सर्च करदा है ना, उहनूं अनेक सर्च इंजन मिल जाते हैं। उत्थे सानूं कैटेगरी मिलती सी, इत्थे सर्च इंजन मिलते हैं। थोड़ा फर्क जरूर है, बट आपां नूं याद ये रखना है कि मेटा सर्च इंजन बारे वो अड्ड ही पुछेगा आपां, ठीक है जी। फिर आप वैब यूटिलाइज दे विच आपां होर चीज़ भी सीख सकते हैं, जिवें इंटरनेट सिक्योरिटी, एंटीवायरस, स्पैम ब्लॉकर्स, फिल्टर, है ना, ये सारे पैकेज आप पा दिंदे आ। प्लगइन की गल करिए, जिवें अडब रीडर, अडब फ्लैश प्लेयर, ये सारे आप वैब यूटिलाइज, मतलब सानू जो लोड़ होंदी आप वैब तो चक लेने, जो सानू लोड़ नहीं होंदी आप डिलीट कर दिंदे आ, ठीक है जी। सो मेरे हिसाब नाल इंटरनेट के बारे इन्नी क नॉलेज मेरे हिसाब नाल तुहानू बहुत होएगी। क्यों? क्योंकि जो मैं कल क्वेश्चन लेके आऊँगा परसों, जो मैं परसों क्वेश्चन लेके आऊँगा इंटरनेट के उत्ते, तो उहदे विच तुहानू होर क्वेश्चन मिल जाणगे वधिया तो वधिया, नवे नवे, ठीक है जी, नवे नवे क्वेश्चन मिल जाएंगे। इस करके आप ज़्यादा नहीं करते, क्वेश्चनों के उत्ते चलांगे तो बैटर रहेगा, ठीक है जी। ओके भी गल, चलो भी मैं हुण तुहानू हुण कुछ चीज़ां दस रहा वां, वो देखो ध्यान नाल, ये इंपोर्टेंट है इस करके दस रहा वां मैं। अज अपने को 10 मिनट पे ने, आप फटाफट आप डेली हुण तो, क्योंकि 10 दिन का कंप्यूटर रह गया, इस करके आप हुण तो अज तो ही कंप्यूटर की वोकैब भी याद कराया करेंगे। कंप्यूटर वोकैबलरी, कदी कदी की हुंदा है जिहड़ी चीज़ मैं उत्थे नहीं दसी वो इत्थे तुहाडी ट्रांसलेट हो जाएगी। कंप्यूटर की वोकैबलरी जिवें अपनी इंग्लिश की वोकैबलरी होंदी है ना, उवें सब तो पहली चीज़ जिहदे बारे पता होवे दस सकते हो, यस, अबेकस। जे आप अबेकस की गल करिए तो ये सब तो पहला की है, गणना यंत्र है, जिहड़ा कि अज की गणना करने वास्ते उपयोग भी हो रहा है। अज भी गणना करने वास्ते इहदा की कीता जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, फर्स्ट कंप्यूटर, बाकी दस रखिया मैं, ये वोकैब है। सिर्फ इन्नी जी गल याद रखियो कि अबाकस की है, पहला कंप्यूटिंग मशीन है, पहली कंप्यूटिंग मशीन है। फिर उस तो बाद देखो अगला एक्सेस टाइम की हुंदा है। एक्सेस टाइम की हुंदा है, मैं जिहड़ी चीज़ बोल रहा वां इनू तुसीं रोक रोक के बाद विच लिख लियो, आपदी कॉपी विच नोट्स बना लियो, ठीक है ना। एक्सेस टाइम की हुंदा है, एक्सेस टाइम की हुंदा है, सुनी चलियो। कंप्यूटर मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए, कंप्यूटर की मेमोरी से डाटा प्राप्त करने के लिए दिए गए निर्देशों तथा वास्तव में
डाटा प्राप्त होने के बीच का समय अंतराल, मतलब एक्सेस टाइम का मतलब की हो गया कि कंप्यूटर की जिहड़ी मैमोरी होंदी है, कंप्यूटर की जिहड़ी मैमोरी होंदी है उथों आपां की प्राप्त करते हैं, डाटा। उथों आपां की प्राप्त करते हैं, डाटा। ठीक है, और डाटा जो प्राप्त करते हैं उन्होंने आपां की दिन्ने हैं, निर्देश। उस डाटा नूं की दिन्ने आपां, निर्देश देते हैं, दिन्ने हैं ना निर्देश। तो आपां कह सकते हैं कि डाटा और इनफॉर्मेशन दे विच लग्या हुआ जिहड़ा समा हुंदा है उन्होंने आपां की कह दिन्ने आ, एक्सैस टाइम कह दिन्ने आ। की कह दिन्ने आ, एक्सैस टाइम। जिवें कि सिमरन सतिंदर सिंह जी ने कहा डाटा एंड इनफॉर्मेशन, तो डाटा एंड इनफॉर्मेशन के विचाले जिहड़ा लग्या समय अंतराल हुंदा है उन्होंने आपां की कहने आ, एक्सैस टाइम। थर्ड वोकैब एक्टिव सैल। आ की हुंदे ने, दस्यो मैनूं एक बारी, एक्टिव सैल की हुंदे ने? सुनियो, एक्टिव सैल जिहड़ा है तुसीं अगे पढ़ोगे एक्सल दे विच, एक्सल दे विच पढ़ोगे। तुसीं सारिਆਂ ने एक्सल देखा होएगा, एक्सल की शीट कुछ इस प्रकार की हुंदी है, हुंदी है इस प्रकार की एक्सल की शीट होंगी है, सानू सारिਆਂ पता होएगा। मैं इत्थे लिखिया ए, एदा मतलब है ए एक्टिव हो गया सैल, ए सैल की हो गया, एक्टिव हो गया। हाँ, एक्सल का डब्बा, एक्सल का जो डब्बा होंदा है उन्होंने आपां की कह दिंदे आ, एक्टिव सैल। जिथे आपां काम कर रहे हैं, जिहदे उत्ते आपां कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वो किहड़ा हो जाएगा, एक्टिव सैल। याद रखियो कि एक्सल में प्रयुक्त होने वाला वह सेल जहां वर्तमान में डाटा लिखा जा रहा है या उसमें चेंज किया जा रहा है उन्होंने एक्टिव सैल कहते हैं। ठीक है जी, हाँ, जिस सैल विच काम हो रहा होवे। नैक्सट वन इज फोर्थ नंबर, एक्टिव विंडो। हाँ जी, एक्टिव विंडो की होंदी है, एक्टिव विंडो हाँ जी, इंटरनेट पूरा हो गया जी, जिहड़ा मेन सीगा। हुण आपां इंटरनेट बचिया होया है वो क्वेश्चनां दे विच करांगे, क्योंकि क्वेश्चनां तो ज़्यादा इंटरनेट कवर होएगा। ठीक है ना, जिहड़ी सिंपल जी नॉलेज सीगी वो कराती सारी। एक्टिव विंडो दसो की हुंदा है? एक्टिव विंडो होंदा है कि जेड़ी विंडो ते आपां यानी प्रेजेंट टाइम दे विच, प्रेजेंट टाइम में जिस प्रेजेंट टाइम ते जिस विंडो का प्रयोग हो रहा है, ठीक है जी, जिस विंडो का की हो रहा है, यूज हो रहा है प्रेजेंट टाइम ते, जिस विंडो का यूज हो रहा है उन्होंने आपां की कवांगे, एक्टिव विंडो कवांगे। की कवांगे उन्होंने? एक्टिव विंडो। अच्छा मान लो मैं दूजी विंडो तो चला गया, तो आपां इस विंडो नूं एग्जिट करके तां ही दूजी विंडो ते जा सकते हैं ना। तो यदा मतलब है एक्टिव विंडो का मतलब ये हो गया भी प्रेजेंट टाइम ते जिस विंडो ते काम चल रहा है उन्होंने एक्टिव विंडो कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, तुहाडे पेपर दे विच एक मोबाइल यूज भी लिखा होया है, वो अलग चैप्टर है, आप अलग चैप्टर करेंगे, है वो इंटरनेट का चैप्टर ही। आप दस दिना तुहानूं मैं आप अड अड चैप्टर किहड़े पढ़ांगे इंटरनेट दे विच। जिवें किसी बच्चे ने जे मैनूं कहा कि सर जी इंटरनेट खत्म हो गया, तो मैं तुहानूं दस दिना वा कि आप इंटरनेट के बारे सीख लिया, IP के बारे सीख लिया, नैटवर्किंग के बारे सीख लिया, है ना। हुण आपां जिहड़ी कल पढ़ांगे आपां यानी क्वेश्चन दे विच, उन्हां विच आपां उन्हां विच आपां की करांगे, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ांगे, वो भी इंटरनेट का पार्ट ही हो गया। ध्यान रखियो, न्यू टैक्निक्स ऑफ IT भी अजकल इन्फॉर्मेशन टैक्निक दे विच न्यू टैक्निक्स किहड़ियां आईयां वो पढ़ांगे आपां। ठीक है, फिर आपां पढ़ांगे जी इहदे विच कंप्यूटर दियां लैंगुएजेस, ये भी इंटरनेट दे विच यूज होंदियां वा। इन्हां नूं अड अड बनाया मैं, रीजन की है कि जो इक्को वारी पढ़ांगे तो इंटरनेट समझ नहीं आउंदा, अड अड समझ ज़्यादा आउंदा है। ठीक है जी, चलो
5 नंबर देखो बई, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅਡਾਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਿਓ ਬਈ ਅਡਾਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਡਾਪਟਰ ਦੱਸਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਅਡਾਪਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰਜਰ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ। ਚਾਰਜਰ नहीं कहते अडैप्टर ਨੂੰ कभी भी, गलत गलत लवप्रीत जी, चार्जर नहीं कहना। तुसी अडैप्टर ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਮੈਂ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 2 ਜਾਂ 2 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स को जोड़ने का काम कौन करता है, अडैप्टर करता है। ठीक है जी, ये भी गल याद रखियो। नैक्सट, अच्छा एड्रैस की हुंदा है। एड्रैस, जे एड्रैस की गल करिए तो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा की स्थिति बताने वाला चिन्ह, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा की स्थिति, डाटा की पोजीशन, डाटा की पोजीशन, ठीक है जी, बताने के लिए डाटा की पोजीशन बताने के लिए केदा यूज होता है, एड्रैस का। ठीक है जी, कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा की पोजीशन बताने के लिए। नैक्सट वन इज 7th नंबर, एड्रैस तो बाद होता है जी एड ऑन। ये मेरा वादा है, आज जिन्नियां भी वोकैब कराऊंगा ना, इन्हां विचों रियलिटी दे विच दस दिना मैं, रियलिटी दे विच 5 क्वेश्चन तुहाडे पेपर दे विच पैणगे 100%, क्योंकि पेपर दे विच वोकैब ही ज़्यादा पुछदा है तुहाडे कोलों। ये मैं खुद बनाइया वा स्पेशल वोकैब, हरेक दे विच ए कढ़िया मैं, फिर बी, फिर सी डी जेड तक लेके जाऊंगा मैं। भाई सैल्फ मेड ट्रिक्स का मतलब की है, जेड़ा बंदा आप दिमाग ला के चीज़ों को कन्वर्ट करे। हुण तक मैं तुहानू 5 नंबर का कंप्यूटर है सारा, वैरी गुड। कौन कहता है जी 5 नंबर का कंप्यूटर सारा? 5 नंबर का कंप्यूटर नहीं है सारा, ध्यान रखी लवप्रीत, हसन की जरूरत नहीं है। खासकर जे 5 नंबर का कंप्यूटर होंदा ना तो मैं तुहानू कंप्यूटर 10 दिनों कंप्लीट करवा देना सीगा, क्योंकि बच्चे SI का पेपर भी दे रहे हैं। चलो जी, एड ऑन की गल करिए। एड ऑन का मतलब यह होंदा है भी कंप्यूटर दे विच हाँ बिल्कुल गुरी जी, कंप्यूटर में अलग से जोड़े जाने वाले उपकरण, यानी यूनिट्स। ठीक है जी, अगे चलो जी। एड ऑन तो बाद अलाइनमेंट की होंदा है, अलाइनमेंट ये आप अगे पढ़ांगे। अलाइनमेंट, ये जेडे अलाइनमेंट ने ये आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उन्हां विच पढ़ांगे। ठीक है जी, ये अलाइनमेंट की होंदे ने, ये पैराग्राफ को ठीक है जी, पैराग्राफ को व्यवस्थित करने के काम आते हैं। मतलब जिवें आप गल करिए जस्टिफाई, एक ही दसूंगा जे जस्टिफाई की चीज़ है। जस्टिफाई का मतलब ये है भी तुसी जो भी लैंग्वेज लिख रहे हो, जिवें आ तुहाडा पेज है, आ तुहाडा पेज है, बिल्कुल विचाले विचाले लिखेगा अखरां नूं, बिल्कुल
ਵਿਚਾਲੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਸਟੀਫਾਈ। मतलब पूरा दा पूरा मतलब एवें विचाले विचाले का मतलब समझे नहीं मेरी गल तुसीं, मतलब पूरा पूरा बराबर कर देगा अखरां नूं, बिल्कुल बराबर। ठीक है, इत्थों शुरू करके लैफ्ट तो शुरू करके राइट से खत्म करेगा, लेकिन आ वाला अखर बिल्कुल बराबर होएगा ये। जिवें मैं लिखिया माई नेम इज जसदीप एंड आ देखो ये बराबर आ गई ना लैन, इनू क्या जाता है। ठीक है जी, टैक्सट अलाइनमेंट जस्टिफाई भी होंदा ने, लैफ्ट अलाइनमेंट भी होंदा है, राइट भी होंदा है, ये बाद दी गल्लां ने। हजे सिर्फ इन्नी जी गल याद रखनी है भी अलाइनमेंट की होंदे ने, पैराग्राफ नू व्यवस्थित करने के काम आउंदे ने। 9वां नंबर अलाइनमेंट तो बाद गल करिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये आप कह सकते हैं जोड़े आप पढ़ के आए हैं एप्लीकेशन के बारे, जिवें अपना MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, टैली हो गया, BG हो गया, है ना। ये सारे के सारे की ने, ये सारे के सारे की ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने। ठीक है जी, यानी एक जां एक तो ज़्यादा प्रोग्राम का जोड़ा समूह होंदा है उन्होंने आप कह दिंदे आ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर होंदा है अर्थमैटिक लॉजिक यूनिट, दसन की लोड़ नहीं है। अर्थमैटिक लॉजिकल यूनिट की होंदी है, कंप्यूटर अथवा CPU का जोड़ा एक भाग होंदा है उन्होंने गणितीय व तार्किक प्रक्रियाओं के विच की करता है, पूरा करता है। यानी अर्थमैटिक गणितीय तार्किकता दे विच। 11 नंबर लास्ट एंड फाइनल 3 रह गए ए दे उत्ते ASCII, ये बहुत इंपोर्टेंट है भी ये बारे सिर्फ याद ये रखना है कि ASCII जिहड़े हुंदे ने ये अक्षरां तथा संख्याओं का 8 बिट के आधारित की हुंदा है, एक कोड हुंदा है। ASCII जिहड़े हुंदे ने ये 8 बिटां का की हुंदा है, एक अंक डिनोट जिन्होंने कह दिंदे आपां। ये बारे जो तुसीं पढ़ना है तो मैं लास्ट में तुहानूं पढ़ा दूंगा। ठीक है ना, लास्ट में तुहानूं पढ़ा दूंगा मैं। वैसे मैं दस्सिया भी सी ये बारे। ASIC की फुल फॉर्म होंदी है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इनफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये फुल फॉर्म होंदी है। ठीक है जी, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ नवा वर्जन आया है वो ASCII 8 आया है, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 256 करैक्टर ने, ਜਿਹਦੀ रेंज 0 तो लेके 255 तक होंदी है, ਜਿਹਦੀ रेंज 0 तो लेके 255 तक होंदी है। ठीक है जी, बस आपां नूं याद रखना है भी ये अक्षरों तथा संख्याओं का की हुंदा है, एक समूह हुंदा है। 12 नंबर असैम्बलर, असैम्बलर की चीज़ है। असैम्बलर का मतलब यह है भी इहो जी प्रोग्राम जिहड़ा असैम्बली भाषा चों मशीनी भाषा विच परिवर्तित हुंदा है। असैम्बली भाषा चों मशीनी भाषा दे विच तब्दील हुंदा है, उन्होंने की कहंदे ने, असैम्बलर कहंदे ने। अज दा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट ए दे उत्ते ऑक्सिलरी मैमोरी की हुंदी है। ऑक्सिलरी मैमोरी की हुंदी है, यस हाँ, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कह सकते हैं बिल्कुल असैम्बलर नूं। ऑक्सिलरी मैमोरी की हुंदी है, जिन्हों आप कह दिंदे आ सैकेंडरी मैमोरी। की कह दिंदे आ? सैकेंडरी मैमोरी कह दिंदे आ, है ना। ये सैकेंडरी मैमोरी जिहड़ी हुंदी है ये बहुत वड्डी क्षमता दे विच आपां आपदे कोल रख सकते हैं, जिवें पेन ड्राइव, है ना, या आप कह दिए मैमोरी कार्ड, या आप कह दिए हार्ड डिस्क, है ना। हाँ बिल्कुल सैकेंडरी मैमोरी। हाँ जी, हुण दसो बई जिहड़ी मैं आ चीज़ वोकैब वाली चीज़ है कि ये सही तैयार की है तुहाडे वास्ते? जे नहीं तैयार सही की तो फिर कल तो आप लिखाउणी बंद कर देंगे। जे वधिया की है तो तुहानूं दस दिना मैं, ये टोटल जिहड़ी वोकैब है, ये टोटल वोकैब है जी तुहाडी 200 के समथिंग तैयार की है मैं, 200। ठीक है जी, 200 के समथिंग मैं पहला ए वाले, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, फिर ई, एवें करते करते जेड तक। यानी कंप्यूटर दे विच 50% पार्ट तुहाडा इन्हां विचों ही पूरा हो जाएगा। जे अपना किते बच भी गया ना तां भी इत्थे पूरा हो जाएगा। और फिर उहदे बाद जिहड़े मैं तुहानूं क्वेश्चन दे रहा हर वारी, उन्हां क्वेश्चनां दे विच भी पार्ट पूरा हो रहा है, उत्थे कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है ना। तो ये अपना ए वाले कंप्लीट हो गए। कल आप बी वाले भी कंप्लीट कर लांगे, यानी एक एक दिन दे विच आपां ए बी सी डी एवें, जिथे छोटे वाले होए मान लो जिथे 5 ही होए उत्थे आपां 10 कर लिया करांगे एक दिन दे विच, ठीक है ना। ओके जी सारिਆਂ ਨੂੰ। तो कंप्यूटर की वोकैब कंप्लीट हो गई। परसों आप पढ़ांगे इंटरनेट की कमांडा ते ओहदे नाल नाल बूटिंग किवें करदा है कंप्यूटर, ओहदे नाल नाल आप पढ़ांगे MS DOS के बारे, ओहदे नाल नाल पढ़ांगे मोबाइल कम्यूनीकेशन। ये सारा एक पार्ट दे विच कर दांगे आप, ठीक है जी। सो मिलते हैं आप नवे कंसैप्ट के नाल। अदों तक लई सारिਆਂ ਨੂੰ रब राखा। हाँ जी सिमरनजीत जी PDF मिलेगी, लेकिन इस कंप्यूटर जिहड़ा मैं करवा रहा वा ये तुसीं नोट्स बनाओ खुद एक बारी, जिवें मैं बोल रहा ना एवें नोट्स बनाओ। तो जेड़े मैं हुण आ इंटरनेट खत्म हो गया, कल मैं क्वेश्चन दूंगा, परसों सॉरी क्वेश्चन लेके आऊँगा, उस क्वेश्चनों तो बाद मैं तुहानूं इंटरनेट की पूरी थीम दे दूँगा, ठीक है ना। ओके जी, थैंक यू।